स्वागत करने का काम करेंगे हमारे वार्ड के युवा नेता मानस दास। मानस थोड़ा स्वागत, तालियों से स्वागत किया जाए। अब हमारे पार्टी में आज जो मेन अनुष्ठान है ज्वाइनिंग का, मैं चाहता हूं एक एक करके समस्त लेडीज हमारे आरती काकीमा के नेतृत्व में आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामने के लिए आई हुई है। उनके मन में बहुत देर से बेसब्री है। मैं चाहता हूं हमारे समस्त नेत्री को झंडा दे करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम करे। और यही नेत्री है जो बंगाल से, इस बूथ से, इस मोहल्ले से, इस गांव से, इस राज्य से, इस देश से बीजेपी को भगाने का काम करेगा। नाम अर्चना दास, अनिता भट्टाचार्य, इति घोष, लक्ष्मी पंडित, कृष्णा साहा, चुटकी घोष, साखी गोपाल मंडल, मुन्नी सिंह, ममता साहानी, वर्षा भगत, मिली दास, आरती दे, श्रीमती आरती, सुमित्रा वर्मा, श्यामली सरकार, नीलमणि बर्मन, अंकिता कुमारी प्रसाद, पूर्णिमा दास सरकार, अनिता पाल। और भी कुछ संजू राउत, रीना राउत, रीता दास, सुकन्या शर्मा, राजरानी शर्मा, सीमा बर्मन, शीला पासवान, सुंदा बुज्जल, पुनीता राउत, सुमन राउत, कलावती राम, विजय राम, अपुर शाह আর অনেক মহিলা আছে। আমাকে আরতি কাকিমা টোটাল 100-র উপরের মহিলার নাম আর ধন্যবাদ দিয়ে যত লোক মাঠে উপস্থিত আছে সবাইকে অনুরোধ করব তালি দিয়ে এই মা বোনদের মনোবলটা বাড়ান আপনারা। এই মা বোনরাই আমাদেরকে জিতাবে, এই মা বোনরাই আমাদেরকে আগে বাড়াবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, 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 বাঙালির মহান নেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, 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 বাঙালি বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও। নেত্রী আরতি কাকিমা, আমি কাকিমা করে ওনাকে সম্বর্ধনা আজকে প্রোগ্রামে নিজের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আরতি কাকিমা আপনি নিজের বক্তৃতা দিন। কি বলবো, আমি সবার নাম জানি না, কিন্তু আমাদের যে উন্নয়ন এখানে দাঁড়াচ্ছে, আমি সবাইকে ভালোবাসা, আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে জানাই সবাই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়াই দিছে। আমার পাড়ায় ভাইরাও ভালোবাসে, মা বাবার সাথে ভিড়ায় নাই, সবাই আসছে। তবে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সে একটা নারী, মমতা ব্যানার্জি, আমিও একটা নারী। সে যদি আজকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এত কিছু করতে পারে, তাহলে আমরা কেন ওনাকে সহযোগিতা করতে পারবো না? এটা সবচেয়ে বড় কথা। আমার আরেকটা কথা হলো যে একটা নারীকে হারানোর জন্য দিল্লির থেকে পুরা ভোট চলে আসছে, অনেক কিছু কথা বলতেছে, কিন্তু সেই সব কথাই আমাদের কান দিয়ে কোনো লাভ নেই। সঠিক জায়গায় জবাব দিতে পারলেই উত্তর জবাব হয়ে যাবে। হাতে লড়াই করে লাভ নেই করতেছি, আমি বেশি কিছু বলবো না। উনি জানি এইভাবে আর কোনোদিন আশা না করে বিজেপির ভোট এখান থেকে জয় জয় করবে, এটাই আমার সবার কাছে আশীর্বাদ, সবার কাছে আমার ভালোবাসা। আর কিছু চাই না আমি সবার কাছে। আর আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বাচ্চুদা, আমাদের সঞ্জয় দা, তারপরে নরসিং মাহাতাই, এইভাবে যদি সবার পিছনে সবাই একজোট হয়ে লেগে থাকে, তাহলে আমরা কখনো হারবো না, পরাজিত হব না কারো কাছে। সবাই সবার সঙ্গে মিলে থাকবে। আমার যে এদের প্রার্থী দাঁড়াইছে ওই দাদাকে আমরা সবাই সবাই যাবে, সবাই দিদিকে ভোট দিবে, আমার এটাই আশা। সবাই দিদিকে ভোট দিবে, ভোট ফালতু নষ্ট কেউ করবে না। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। देने के लिए अनुरोध करता हूं हमारे युवा के ब्लॉक प्रेसिडेंट को गोपाल शाह जी। বন্ধুগণ, আজকে 1 নম্বর ওয়ার্ডে 45 আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি
আমাদের ২৬ বিধানসভা শিলিগুড়ির প্রার্থী ডক্টর ওম প্রকাশ মিশ্র আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আজকে আমাদের এখানে ভোট আমরা কেন দেব, কোন দলকে দেব, এই উপলক্ষে বন্ধুগণ, এখানে যেরকম আমাদের শ্রদ্ধেয় ওম প্রকাশজি আছেন, এখানে নরসিং মাহাতো আছে, জেপি কানোরিয়া আছে, গোপাল সাহা আছে, মাসুম কাপুর আছে, স্বপনদা আছে, সঞ্জয় রাউত আছে, সঞ্জয় আছে, এখানে আছে হয়েছে। আমাদের সরকার যখন নামগুলো বলে দিতে পারি, যারা সেই সময় ট্রেনের ফ্লোরে বসে একটা বাঙ্কের উপরে 5 জন বসে দিদির ডাকে সাড়া দিতে আমরা ধর্মতলায় যেতাম, আমরা কি খেতাম, কোথায় শুতাম, আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আজকের নিম্ন মধ্যবিত্ত একদম যারা দিন আনে দিন খায়, আমি খাস খবর দেখে, আপনারা যারা অনেকে আছেন তারা জানেন আমার উপরে কতবার আক্রমণ হয়েছে, কিভাবে আমরা দলটা করতাম। কিন্তু দিনের পরিবর্তন হবেই হবে, সমাজের পরিবর্তন হবে, মানুষের। সারা পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো নেতা নেত্রী, আমি যতগুলো বিধানসভা ভোটটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই একটা ভোট পশ্চিমবঙ্গের ভাইচারা সম্প্রীতি থাকবে কি থাকবে না। আমরা শিলিগুড়ি মিনি ভারত, আমরা এই শিলিগুড়িতে জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছি, পড়াশোনা শিখেছি, আজকে প্রায় বয়স্কদের তালিকায় ঢুকতে চলেছি। আমরা কোনোদিন আমার পাশের বাড়ির যে বাসিন্দা সে হিন্দুস্তানি, আমার বাবা মা শিখিয়েছে बेटा उसको प्रणाम करो, उसको हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। पाशेर बाड़ी मुस्लिम, ओके कखनो शिखायनी जो ओ मुस्लिम ओर पा धुए प्रणाम करबे ना, ओके नमस्कार करबे ना। आमरा धर्मे विश्वासी ना, आमरा जय श्रीरामे विश्वासी ना। श्रीराम केन जय सीताराम होबे ना? ওরা মহিলাদের সম্মান করতে জানে না, ওরা মহিলাদের সামনে রেখে চলতে জানে না। আমি মনে করি আমাদের নেত্রী যেই শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত করেছে, আমি মনে করি মহিলাদেরকে যদি সম্মান করা হয় ঘর সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। মহিলাদেরকে যদি সম্মান করা হয় তাহলে সমাজ সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। আমার পশ্চিমবঙ্গ সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। আমরা কি দেখছি এই বিজেপি সরকার আসার পর? মহিলাদেরকে বারবার অসম্মান করা হচ্ছে, নানা রকম কটূক্তি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে, একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, সে ভারতবর্ষে একজন মুখ্যমন্ত্রী, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পুরো দিল্লি শিলিগুড়ি, পুরো দিল্লি বাংলায় চলে এসেছে। তারাও জানে একমাত্র প্রতিবাদী মুখ, প্রতিবাদী চরিত্র, যে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। এদের ভয় একজনকেই, সবাইকে আমরা চুপ করে দিয়েছি। রাহুলকে পাপ্পু টাপ্পু বলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আজকে মায়াকে আমরা প্রায় ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। রাত 1টা অবধি ভোট গণনা করে আমরা হারিয়ে দিয়েছি। এখন বাকি বাঁচলো সারা ভারতবর্ষে একটাই মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। একে যদি হারানো না যায়, এ যদি এবার পশ্চিমবঙ্গে আবার তৃণমূলের সরকার গঠন করে, তাহলে কিন্তু আগামী 24-এ আমাদের দিল্লিতে গদি টলমল করবে, আমরা থাকবো না। কারণ আমরা যেভাবে দেশ চালাচ্ছি, অর্থনীতিকে যে জায়গায় নিয়ে গেছি, ডিমনিটাইজেশনের মাধ্যমে যেভাবে দেশকে লুট করেছি,
খালি মেরুকরণ আর ধ্রুবীকরণের মাধ্যমে মানুষকে বিভাজন করে আমরা ভোট গুছাবার চেষ্টা করছি। আপনি সারা ভারতবর্ষে যত স্টেট আছে আপনি এই কাজটা করছেন, করুন, কিন্তু বাংলা একটা এমন জায়গা, ভারতবর্ষে একটাই প্রান্ত যেই প্রান্তের মানুষ খুব শিক্ষিত হয় আর পলিটিক্যালি খুব সেন্সিটাইজ হয়। সুতরাং আমাদেরকে মমতা ব্যানার্জিকে হারাতেই হবে, আমাদেরকে জিততেই হবে। না যদি আমরা, আপনারা চিন্তা ভাবনা করে ভোটটা দেবেন। আগামী দিন আপনার এই সাউথ আম্বেদকরে আপনি থাকতে পারবেন কিনা, আপনার থাকার দিশাটা ঠিক করবে পাশের বাড়ির একজন। আপনি কোথায় যাবেন, একটা না একটা প্রকল্প পরিবার পিছু ছুঁয়ে চলে গেছে। সুতরাং এই রকম মানবিক, এই রকম জনদরদী নেত্রী আর আসবে কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমার দেখা এটাই শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনাদের কাছে আমি ভিক্ষা প্রার্থনা করছি, করজোড়ে আপনারা ওনাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গে যেন আবার তৃণমূল সরকার গঠন হয় সেই রাস্তা প্রশস্ত করুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आज हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं हमारे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के ओम प्रकाश मिश्रा जी से ताली बजा करके, और यह शंकर घोष और अशोक भट्टाचार्य के कान तक जाना चाहिए। धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर इस मंच पे उपस्थित हैं हमारे वार्ड के सभापति बड़े भाई बच्चू दा, बड़े भाई नरसिंह दा, भाई मासूम, भाई गोपाल साहा जी, जेपी कनौजिया, संजय राउत, संतोष चौधरी, हमारे बहुत ही प्रिय और पिछले 25 साल से लड़ाई करते हुए जो आज हम लोगों के बीच में आई है आरती घोष जी। मेरा उनका 25 साल से झगड़ा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती भी उन्हीं से मेरा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चाय पिलाया और पान खिलाया इस क्षेत्र में तो आरती घोष। रात 12 बजे रात में भी, सुबह 6 बजे भी, दोपहर के 1 बजे भी। तो हम लोग बहुत साल से कोशिश कर रहे थे कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। और कुछ दिन पहले जब पदयात्रा हमारे पार्थी को लेके कर रहे थे, उनके मंदिर में हम लोग गए थे, और उस दिन भी बात हुआ था कि वो अब हम लोगों के बीच में आएगी, हम लोगों के साथ रहेगी। और उसका आज हम लोगों को, सब लोगों को एक जगह, एक सूत्र में बांधने का काम उन्होंने आरती घोष जी ने किया है। 45 नंबर बूथ, 44 नंबर का एक पार्ट, आधा पार्ट, और 46 नंबर का आधा पार्ट। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 2 बूथ, 44 का आधा, 45 पूरा और 46 का हाफ, 2 बूथ का आज हम लोगों का यहाँ मीटिंग बुलाया गया है पार्टी के तरफ से। और हम लोग डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी के समर्थन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारा मीटिंग हुआ, बहुत सारा जुलूस हुआ, लेकिन हम 2-4 बात ही आप लोगों को बोलेंगे, उसके बाद हमारे प्रार्थी बोलेंगे कि हम लोगों को अगर 5 साल भाजपा कर रही है, सोना का बंगाल बनाएंगे। आज से 5 साल पहले हमारे वार्ड के सभी जनता, ज्यादातर जनता बीजेपी को वोट दिए थे, और बीजेपी की यहाँ पर काउंसलर मालती राय जी हुई थी। अगर यहाँ पर तकरीबन 300 कुर्सी है और करीब 100-150 लोग खड़े हैं और 100-200 लोग बाहर से सुन भी रहे हैं, मेरा आप सबों से एक ही प्रश्न है कि मालती राय भाजपा क्या 1 नंबर वार्ड सोने का बना सका है?
हमारा जो विश्वास उनके ऊपर था, दोनों हाथ से जो लोग आशीर्वाद दिए थे, क्या उस पर वह खरा उतरी है? अगर नहीं है तो एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग। अगर मालती राय 5 साल में अगर 1 नंबर वार्ड को सोना का वार्ड अगर कर देती, नाला अगर कर देती, परिष्कार नाला करती, रेसिडेंशियल अगर दे देती, विधवा पेंशन अगर दे देती, वृद्धा पेंशन अगर दे देती, रास्ता का निर्माण अगर कर देती, हाउसिंग फॉर ऑल में घर का अगर पक्कीकरण अगर कर देती, तो मैं इसी मन से कहता कि उन्हीं को दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी का मजा हम लोग ले चुके हैं। और बीजेपी का जो पार्टी है वो आज से 2 महीना पहले तक जब मरे वह चूल नहीं कटाया, बोला ना कम्युनिस्ट में एरकम है ना, लेकिन आज वो मंदिर जा रहा है। तो यही आप लोगों से अनुरोध है कि भौताबाजी में नहीं आना है, किसी गिला शिकवा में नहीं जाना है। कल भी शंकर घोष 15-20 लोगों को लेकर के गली गली घूम रहे थे, यहाँ पीछे गली में। जब हमारे पार्टी आने वाले थे तो उससे कुछ देर पहले शंकर घोष बमपंथी स्टाइल में ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यह हमारा साउथ अंबेडकर कॉलोनी, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्म जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग गला में गला मिला करके रहते हैं और हर एक सुख दुख में हम लोग साथ रहते हैं। इसलिए यह बंगाल है, इसको हम लोग गुजरात होने नहीं देंगे। यह बंगाल है, साउथ अंबेडकर कॉलोनी है, इसको हम लोग साउथ अंबेडकर कॉलोनी ही रखेंगे। हम हमारे पार्टी जी को एक बात कहना चाहते हैं कि आज से 15 साल पहले यह पंचायत में था, जहां हम लोग खड़े हैं, यह पंचायत के अधीन था, शीशोरंगी के अधीन था। लेकिन जब हम लोग जब जीते तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते पोल को आगे तक बढ़ा दिए। पोल बढ़ा दिए तो लाइट भी लग गया, ड्रेन भी हो गया, लोग अपना वोटर भी यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए। आरती जी का घर यहाँ पर अकेला घर था, 2-4 घर इनका घर, वहां जागो सिंह का घर। लेकिन आज हजारों की संख्या में पिछले 20 साल में लोग यहाँ पर आए हैं। 20 साल 22 साल में यह साउथ अंबेडकर कॉलोनी नया तरीका से बसा है। तो इसीलिए दोनों हाथ से हम लोगों को आशीर्वाद देना है और डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी को यहाँ से जिता करके कलकत्ता भेजना है, कलकत्ता भेजना है। और जितने वे पढ़े लिखे लोग हैं, जितने वो पढ़े लिखे हैं, उनके अगल बगल में कोई अशोक भट्टाचार्य, शंकर घोष टिकने वाला नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है। और अगर हमारे अगर जीतते हैं, अगर मेरा आवाज सही अगर होगा, आज से 10 साल पहले भी जब गौतम देव जी खड़े हुए थे तो उस मंच से मैं बोला था, दीदी थी उस मंच पर, उसमें बस्ती यूनियन का मेयर इन काउंसिल था, कि गौतम देव को जिताइए, बहुत बड़ा दायित्व इनको दीदी देगी। आज इस मंच से कह रहा हूं कि अगर हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी अगर जीत के जाते हैं, आप लोग अगर अपना आशीर्वाद देते हैं, आने वाले दिन में शिक्षा मंत्री का पोस्ट कहीं जाने वाला नहीं है, शिक्षा मंत्री का पोस्ट कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए कि जिस पार्टी को दीदी 5 तारीख को 2000 महिला का पदयात्रा डॉक्टर मिश्रा के माध्यम से कराया गया, वो परिचय का दिन था। दीदी सिलीगुड़ी के वासी को दिखाना चाह रहे थे, सिलीगुड़ी के तमाम पार्टी कार्यकर्ता से लेकर के प्रेस मीडिया सभी को बतलाना चाह रही थी कि ओम प्रकाश मिश्रा हमारा भाई है, आपका आने वाले दिन सिलीगुड़ी शहर का विधायक होगा और अगर आप लोग जिताते हैं तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम उन्हें देंगे उनके कंधे पर। जो एक आदमी हमारे समाज में अगर एक शिक्षक होता है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो, सुबह से लेके रात तक हम लोग कहते हैं सर नमस्कार, सर नमस्कार। और हमारे पार्टी जो है वो इग्नू जो इंटरनेशनल सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर रहे हैं, उसके वाइस चांसलर, उनके अगल बगल में कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हम लोग सब लोग साथ रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस एक परिवार की तरह रहेंगे और सब सुख दुख में खड़ा रहेंगे। खेला होवे तो 17 तारीख को सुबह 17 तारीख को सुबह 6 बजे
जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं 300 लोग चेयर पर बैठे हुए हैं, 150 लोग खड़े हैं, 450 लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि 6 बजे सुबह में लाइन में जाकर के लग जाइएगा, नहीं आएगा। और कुल्लीपरा में 4 बूथ मिला करके एक मीटिंग करेंगे, चूंकि वह एरिया छोटा है और घना आबादी है। 4 बूथ में एक मीटिंग, और फिर BRI में मासूम कपूर के नेतृत्व में एक मीटिंग, वहां पर 2 बूथ का, और एक बच्चूदा के घर के सामने हम लोग मीटिंग करेंगे। लोकसभा में जो जो गलती हम लोगों से हुआ है, इस बार हम लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे। घर घर बूथ लेवल पर करेंगे। तो पूरा विश्वास के साथ है तो कि टेंशन करे फिर अगर नहीं होगा तो फिर बच्चूदा का अवस्था गड़बड़ है। बच्चूदा हमको खोजेगा, हम भाग जाएंगे फिर, तो फिर आप लोगों को कौन देखेगा? आरती दी भी नहीं रहेगी, नरसिंह भी भाग जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब लोग कंधा से कंधा मिला करके, और दूसरा एक बात और कहेंगे, हमारे युवा, महिला और पार्टी के जितने भी लोग हैं, हो सकता है बातचीत में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, बड़ा छोटा हो जाए, मन को तकलीफ नहीं करना है। 15 दिन झगड़ा होगा, 15 दिन के बाद एटा बोल लो हम के एक कागज असलो ना, इस बात को नहीं करना है। और सब लोगों को सम्मान देते हुए, सभी लोगों को कंधा से कंधा मिला करके, और विशेष करके हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के जो हैं संतोष चौधरी, आप भी, आपका भी इसी बूथ में आपका वोट है, आप भी, आपको मामी के साथ में आप मेहनत करो। मुन्ना, सपंदा, सब लोग, हमारे कन्वेनर, सब लोग कंधा से कंधा मिला करके हम लोग काम करेंगे, और मिश्रा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से इस बूथ से लीड कराएंगे। 2 तारीख को जब लीड होगा तब जाकर के सर ऊंचा होगा। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य शेष कर रहे हैं। मां माटी मानुष, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, धन्यवाद। 20 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में डेली पैसेंजरी कर रहे हैं, और हमारे पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी सपनाएं दिखाई रही है आम जनता को। आप सभी जानते हैं कि 2014 में भी इस तरह से बड़ी बड़ी सपनाएं हम लोगों को दिखाए हैं कि 2 करोड़ नौजवान को हम जीतने के बाद नौकरी देंगे। हम आप सभी को विदेशों में जो हमारे देश के काले धन बड़े बड़े पूंजीपति रखे हैं जमा कर कर, उनको लाकर 15 लाख आप सभी के बैंक खातों में देंगे। बहुत सारे वादे किए, जीतने के बाद वो भूल गए। फिर विधानसभा, फिर लोकसभा आया, फिर वो जीत कर आए, और उनका कारनामा कि भारतवर्ष की मुनाफा जितने भी कल कारखाना आए हैं, रेलवे संचालक को, हमारे 26 विधानसभा केंद्र के रंजन सरकार जी भी आ रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। गाड़ी है, इंजन है, आप लोग को मैं समझा देता हूं। आप लोग सभी जानते हैं सांप कई तरह का होते हैं। अमित शाह, मोदी जी 2 मुखी सांप है। 2 मुखी बच्चे बच्चियों को साइकिल तक दिए हैं पढ़ने। बहुत आदमी नहीं जानते हैं, ये भी मिल रहे हैं। आपके बच्चे जब 18 साल का हो जाएंगे, शादी के लिए आप दर गरीब आदमी ठोकर खाते हैं, उनका विवाह के लिए 25,000 एवं पढ़ाई करने के लिए 10-10 हजार रुपया करके देते हैं। अभी स्वास्थ्य साथी दिए हैं हम लोगों को। आने वाले दिन अगर हम लोग इसी विश्वास के साथ दीदी को हाथ मजबूत करते हैं, दीदी को जिताते हैं,
दीदी को पार्टी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 10 वादाएं किए गए हैं, वो 10 वादाएं को पूरा करेंगे। और लॉकडाउन देखिए, यहाँ राजू बिष्ट दार्जिलिंग जिला का लोकसभा से जीत कर गए हैं, एमपी है। इस लॉकडाउन में एक बार भी आप लोगों को देखने के लिए आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं है। आप सबको मालूम है भाई और बहनों, हमको ख्याल से आप लोगों को भी मालूम नहीं है, आप लोग के पास भी नहीं आया। लेकिन हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गरीब के पास पहुंचा है। यहाँ पर बहुत मंच में बैठे हुए हैं हमारे नेतागण हैं, हम लोग खुद आप लोगों के पास पहुंचे हैं। हमारी दीदी रोड में उतरकर चावल दान की है, चावल दी है। इस लॉकडाउन में हमारी दीदी लगातार गरीब को पक्ष में काम करती आई है, काम करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जो दीदी का जो सपना है तीसरा बार के लिए, ये आप लोगों के माध्यम से ही दीदी तीसरा बार के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग अगर अपना बहुमूल्य वोट दीदी के पक्ष में अगर देते हैं तो दीदी तीसरा बार के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि बीजेपी के हवा में मत भोड़िए। काहे बीजेपी बहुत तरह का लालच दिखाएंगे, उनके पास बहुत सारे धन है, अभी धन खर्चा कर रहे हैं। उनका नेता लीडर लोग सबको मैंने दिखला रहा है रात को नोट, इसलिए नोटों की तरफ नहीं भागिएगा, काम की तरफ भागिए। जो काम करेगा, आपको दिल अगर करता है कि दीदी काम कर रही है तो दीदी को वोट दीजिए। अगर दीदी काम नहीं करती है तो आप दीदी को वोट मत दीजिए, मैं कहूँगा आपको। लेकिन दीदी अगर आपके लिए काम कर रही है तो आप दीदी को वोट दीजिए। दीदी का जो पार्टी है जहाँ जहाँ है, आप सभी का रिलेटिव होगा, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, जहाँ जहाँ है आपका, जहाँ जहाँ सोर्स है, आप उन सभी को भी कहिएगा कि दीदी को हाथ को मजबूत करना है। दीदी का पार्टी जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं उनको हम लोगों को जिताना है। हम लोग दीदी का सैनिक है। दीदी के लिए मुख्यमंत्री हम लोग आप सभी का मदद से देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? एक बार आवाज लगाइए। देखिए, हमारी जनता जानती है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। हवा मिठाई के तरह खाली माइक में भाषण देंगे तो काम नहीं होने वाला। इसलिए मैं आप सब कि तीसरी बार के लिए हमारे दीदी का जितने भी पार्टी है जहाँ जहाँ है, और हमारे सिलीगुड़ी विधानसभा का प्रार्थी डॉक्टर ओम प्रकाश जी को भारी मतों से आप लोग वोट देकर जिताएंगे, ये आशा रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, मां माटी मानुष सरकार जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जय बांग्ला जिंदाबाद। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रार्थी प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं बच्चू दत्त महाशय से कि वो हमारे प्रार्थी को सम्मानित करें। बच्चू दा मंच में आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं सुनील घोष महाशय को। हमारे इस बूथ के प्रेसिडेंट सुनील घोष जी, आप कहीं पे भी हो, कृपया करके मंच में आने का कष्ट करें। तालियों से स्वागत किया जाए डॉक्टर साहब का, जो स्वागत किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट संजय पाठक जी को हमारे इस बूथ के युवा नेता रामबली से अनुरोध कर रहे हैं, वो कृपया मंच पे आकर के हमारे नरसिंह दा को सम्मानित करें। रामबली तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे इस क्षेत्र के युवा नेता रतन से कि रतन कृपया आप भी मंच में आ जाएं और आकर के हमारे इस ब्लॉक के युवा प्रेसिडेंट गोपाल साहब को सम्मानित करें। अब की बार दीदी सरकार, अब की बार
अब मैं अनुरोध करता हूं जेपी कनोडिया जी को सम्मानित करेंगे। हमारे इस बूथ के बूथ सभापति हमारे बड़े भैया सुनील घोष जी। सुनील दा, कृपया आप मंच में आकर के जेपी जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक कलाम चाचा को सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे वार्ड के एवं जिला के ट्रेड यूनियन के नेता नरसिंह महतो। रतन, भाई रतन, आप मंच में आने का कष्ट करें। सुनील दा, रामबली। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे इस क्षेत्र के नेता रामचंद्र पंडित जी, आप आकर के बच्चूदा को सम्मानित करने का कार्य करें। रामचंद्र पंडित जी। अब मैं अनुरोध करता हूं रतन संजय राव जी को सम्मानित करने का काम करें। अब हमारे समाज सेवी नेत्री, हमारे पार्टी के नेत्री और समाज सेवी प्रदीप्ता चक्रवर्ती के सम्मानित करबे हमारे सुनील दा। अब हमारे महिला नेत्री पार्ट नम्बर 42 उनाके सम्मानित करबे मानस दास सम्मानित करो इलापदी के। এখন করবে শোভা দাসকে আমাদের ওয়ার্ডের নেতা সুনীল দা। আমাদের যুব ব্লক সভাপতি ভাইস প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করবে মাসুমদাকে। আমাদের মহিলার একজন সুনীলদার বিশেষ নামটা বলতে পারবো না, কি ঘোষ, সুচিত্রা ঘোষ, আপনি একটু আসুন। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্টকে যুবর একটু সম্মানিত করবেন, দেবেন। এই ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের রাজ্যে যুবা নেতা জেপি দা, আমাদের ব্লকের নেতা বুড়াদা, আমাদের ওয়ার্ডের নেতা বাচ্চুদা, নরসিংদা, কালাম চাচা, আর আমাদের মহিলা নেত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। সবার নাম বললে বোধহয় সময়টা ব্যর্থ হয়ে যাবে, যেহেতু অনেকই বক্তা আছে। আমাদের মেন লড়াই হচ্ছে এখন ভোটে যেভাবে হোক আমাদের তৃণমূলকে জিতিয়ে নিয়ে যাওয়া। তার মাঝখানে আজকে একটা খুশি খবর রয়েছে, আছেন যিনি এই চত্বরে আজকে তৃণমূলে ঝান্ডা নিতে এসেছেন, সেই কাকিমাকেও আমি প্রণাম জানাই। আমাদের আরতি কাকিমা আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করবো আরতি কাকিমার জন্য একবার জোর হাতে তালি দিন। এই আরতি কাকিমা আছে যে এখন এই পাড়াতে সিপিএম ইনার মাধ্যমে এই এরিয়াটা দখল করে রাখতো, কিন্তু আজকে সেই সিপিএম এই পাড়াতে একটা লোক খুঁজে পাবে না। আমাদের আজকে এখানে ভালোভাবে সংগঠনটা মজবুত হলো, তার জন্য আমি আরতি কাকিমাকে কোটি কোটি নমস্কার জানাই। আমি বলতে চাই, ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন, আমি কিছু বলবো না। প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে আমাদের ওম প্রকাশ দা আছেন, উনি বলবে, কিন্তু আমি ওয়ার্ডের ব্যাপারে বলবো। আপনি বলুন, আমাদের ওয়ার্ডে একটা বস্তি আছে, সেই বস্তির নাম হচ্ছে হরিজন বস্তি। हरिजन बस्ती गुलाय हमारे अनेक भाई बहनेरा थाकें। हरिजन बस्ती में बहुत सारे भाई बहन रहते हैं और मैं उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जब अपने माइक में टीवी में खड़ा होकर घोषणा करते थे कि भाइयों और बहनों आज से लॉकडाउन हो गया, आप लोग घर पे रहिएगा, लेकिन
क्या प्रधानमंत्री, क्या उनके साथ में काम करने वाला उनका MP राजू बिष्ट, क्या उनका काउंसलर मालती राय, उनको ये पता नहीं होना चाहिए था कि लॉकडाउन होने के बाद हम लोग तो घर में थे, लेकिन हमारा हरिजन समाज का हर एक आदमी जो म्यूनसिपैलिटी में नौकरी करते हैं, नर्सिंग होम में नौकरी करते हैं, रास्ता को सफाई करते हैं, हेल्थ का काम करते हैं, उन्होंने अपना जीवन का परवाह किए बगैर ही जाके डेली अपना काम किया और सिलीगुड़ी का साफ सफाई व्यवस्था। हमारे तृणमूल कांग्रेस के श्रीमान ओम प्रकाश मिश्रा जी, उनके समर्थन में ये सभा आयोजित की गई है। हमारे तृणमूल कांग्रेस के एक नंबर वार्ड के सभापति बच्चू दा, ब्लॉक के हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता संजय पाठक जी, INTTU के नेता नरसिंह महतो जी, एक नंबर वार्ड की महिला नेत्रीगण, नमस्कार करता हूं। दोस्तों की जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है और बीजेपी किराएदारों को लेकर मकान दखल करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस चुनाव में पूरा जो अपने चुनाव प्रचार का इंटरनेशनल स्टार कैंपेनर बनाया है इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। इंटरनेशनल स्टार कैंपेनर इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कुछ महीने पहले अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री जी, डोनाल्ड ट्रंप का जी के टीम में है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उतरे हैं, पैसों वाला मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आई हैं, कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जी, कई प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्री खास करके शिवराज चौहान जी, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, RSS की पूरी टीम, CBI, ED, IT एवं EVM मशीन, इतनी बड़ी टीम किसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए? भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, नारी शक्ति की प्रतीक, सर्वजन श्रद्धा नेत्री, जननेत्री, जनगण मन की अधिनायिका, बंगाल की अग्नि कन्या श्रीमती ममता बनर्जी के विरुद्ध में। इससे ये तो प्रमाणित हो ही जाता है कि कितनी शक्तिशाली है हमारी नेत्री कि बीजेपी को खुद प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को उतारना पड़ा है। ये भी इससे साबित होता है कि हमारी मुख्यमंत्री बंगाल के 12 करोड़ लोगों के दिलों में बसती है और उनको वहां से निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार चल रहा है और इस बीच हमारी नेत्री चोटिल हो गई हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि नेत्री को रोका जा सकता है, ये उनकी गलतफहमी है। ये बंगाल की भूमि है, ये वीरंगनाओं की भूमि है, ये बहादुरों की भूमि है। आपको याद होगा कि इस भूमि में मातृंगनी हाजरा ने भी जन्म लिया था और उन्होंने जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक के बाद एक आंदोलन किया था बंगाल के लोगों को लेकर, अंग्रेज उनसे डर गए थे, उनके सीने में गोली मारी गई थी, लेकिन जब तक वो जमींदोज हुई, लेकिन वो तिरंगे को उन्होंने जमींदोज होने नहीं दिया। आज भी वो तिरंगा लहरा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को अगर चोट पहुंचाकर, उनको डराकर बंगाल के लोगों का विकास करने से कोई रोकना चाहता है तो ये असंभव है। और अगर किसी तरह जहां हिंदू के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है, वह उन्नाव और हाथरस जैसी घटनाएं आम बात है।
अभी आप देख रहे हैं योगी जी आके इधर प्रचार कर रहे हैं, और 3 दिन पहले वहां एक 18 साल की महिला से आगरा के अंदर 3 लोगों ने उसके पति के सामने रेप किया। ये तो इनकी हालत है। और सबसे बड़ी बात जो इनका झूठ पकड़ा जाता है वो है असम का। असम में 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि वहां के 40 श्रमिकों को 350 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाएगी। यही वादा इन्होंने बंगाल के घोषणा पत्र में भी किया है 350 रुपया का। लेकिन सत्ता 5 साल असम की इन्होंने लेकर उसकी मलाई खाई, लेकिन इन्होंने 350 रुपया वहां की मजदूरी को नहीं किया। इसीलिए आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, ये वोट के लिए आपको भ्रमित करते हैं। बांग्ला धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अब ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल युवा कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। नंदीग्रामेर बुथ नम्बर 7 बयाल स्कूलेर बुथ नम्बर 7 आमादेर नेत्री एक पा दिए शुभेंदु अधिकारी जे शट मेरेছেন, शुभेंदु अधिकारी कस्मिन कालेও चिंता करते पारेनনি। আমরা শুধু নন্দীগ্রাম না, নন্দীগ্রামের কথা যদি বিজেপির হয়ে প্রচার করছে, নন্দীগ্রামে আমাদের নেত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলে যাচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্বিতীয় আসনে লড়ার চিন্তা করতে হবে না। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহরা চিন্তা করে নিয়ে গিয়ে ফেলবেন। বাচ্চুরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন তাদেরকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাই, কিন্তু বিজেপির যে সমস্ত নেতারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেন আপনাদের জেনে রাখা উচিত, তারা শুধুমাত্র আমাদের দেশে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছেন তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য শুধুমাত্র জয় শ্রীরাম স্লোগান ব্যবহার করেন। আজকে এখানে যারা দলিত আছেন, আজকে যারা সংখ্যালঘু আছেন, যারা নিপীড়িত মানুষ আছেন, তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য শুধুমাত্র জয় শ্রীরাম শব্দ ব্যবহার। उनसे अनुमति लेकर ना नहीं जाएंगे। हम लोग का यहाँ का कोई नहीं जाने वाले, सब यहाँ रुकेंगे 2 मिनट। हम कुछ भाषण उषण नहीं देंगे। आज आरती दी जिस तरह से ज्वाइनिंग किए हैं, मैं 101% कह रहा हूँ कि 45 नंबर बूथ हम लोग जीत कर आएंगे। और हमारे छोटे भाई संजय खाने का बात बोला तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि संजय और बाचुदा मिलके जितना पैकेट हमको देगा उससे ज़्यादा आप लोग को हम खिलाएंगे, इतना वादा करते हैं। पैकेट की बात सुन के तो मुझे भी भूख लग रही है। আমি এটা ঠিক করেছি যে আমার বক্তব্য আর কিছুটা হিন্দিতেও বলার চেষ্টা করব। এখানে আমাদের যে সমস্ত নেতৃত্ব উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা আমাদের সামনে আমার সামনে সহ নাগরিকবৃন্দরা রয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এত সুন্দর মনোগ্রাহী আর সত্যিকারে বলতে গেলে এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ হচ্ছেন সম্মানীয়া আরতি ঘোষ দিদি। একটু আর ওনার সমাজসেবিকা হিসাবে ওনার ভূমিকা, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ওনার ভূমিকা, আর একজন সুন্দর ভালো পড়শি হিসাবে ওনার যে ভূমিকা, সেটা কিন্তু স্বাক্ষর আজকে আপনাদের দুটো পাড়া, আপনাদের দুটো বুথ। এবং আমি তাই জন্য এমন একজনকে জীবনের একটা বড় অংশ ব্যতীত করেছেন, তাকে সম্মান করতে পেরে, তাকে আমার সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। তাই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বাচ্চুদাকে ধন্যবাদ জানাবো না, কারণ কি উনি হচ্ছেন আমাদের নেতা, উনি হচ্ছেন মেন ব্যাটসম্যান। আর তাই জন্য বাচ্চুদা 1 নম্বর ওয়ার্ডে যে সমস্ত কর্মসূচিগুলি করছেন আমি সেগুলিতে যুক্ত হচ্ছি, এবং যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আর কি আমারও অনেক কিছু শেখাও হচ্ছে। আর পাশাপাশি যে ক্ষুরধার বুদ্ধিধর আমাদের নেতা, জেলার নেতা সঞ্জয় পাঠকজি যেখানে রয়েছেন, সেখানে এই 1 নম্বর ওয়ার্ডে যে আমরা
অনেক অনেক ভালো রেজাল্ট করতে চলেছি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আমাদের ছোট ভাই রাউত সাহেব এখানে বসে আছেন, তাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। সন্তোষজি বসে আছেন হিন্দি প্রকোষ্ঠের, কালাম সাহেব বসে আছেন, আর আমাদের নরসিংহ মাহাতো সাহেব বসে আছেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর মিটিংয়ের সঞ্চালক আমাদের মাসুম কাপুর। আমি আপনাদেরকে এটাও জানাতে চাইছি যে আমার সঙ্গে এখানে আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের মহিলা নেত্রী, সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী, উনি এখানে এসেছেন। আমাদের সঙ্গেই এসেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের অন্যতম কাণ্ডারি প্রতুল মৈত্র মহাশয়, উনি হয়তো উঠেন নেমেছেন। দেখুন, বক্তব্য আমি প্রায় 20 বছর ধরে দিচ্ছি, বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে, এবং অনেক সময় মনে হয় যে বক্তব্য শোনাটা অনেক বেশি ভালো বক্তব্য দেওয়ার থেকে, তাই জন্য অনেক সময় নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু যেহেতু আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছেন, তাই জন্য আমি মনে করি 2-4টা প্রাসঙ্গিক কথা বলবো। আমি সম্মানীয় আরতি ঘোষ কেন তৃণমূলে জয়েন করেছেন, এটা কারণ সম্পর্কে উনি বলেছেন যে উনি দিদিকে দেখে অনুপ্রাণিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে অনুপ্রাণিত। কারণ কি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী, আর একজন নারী, একজন মহিলা, তিনি যেভাবে সফল এবং কুশল নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলার মানুষকে, সেটা কিন্তু বিরল। আর এটা ঠিক যে আজকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে সবচাইতে বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জম্মু কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স বা তামিলনাড়ুর ডিএমকে, আমাদের উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু চাইছেন, ভাবছেন যে কবে বাংলার নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তারপরেই তাকে সঙ্গে রেখে, তাকে সামনে রেখে আমরা সারা দেশে মোদি রাজের অবসান ঘটানোর জন্য আমরা এগিয়ে আসব। সত্যিকারের পরিবর্তন হবে। আজকে খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির মিটিংয়ে কথা বলছিলাম। গভর্নমেন্ট, মোদি গভর্নমেন্ট সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীদের, খুচরো ব্যবসায়ীদের, তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। আজকে লকডাউনের সময় আমরা প্রত্যেকে কম বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, প্রত্যেকেরই আয় কমেছে। সেটা আমেরিকাতেও হয়েছে, সেটা জার্মানিতে হয়েছে, সেটা আফ্রিকার নাইজেরিয়াতে হয়েছে, সর্বত্র এটা হয়েছে। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন না, পৃথিবীতে 2টো শিল্প গোষ্ঠী আছে যাদের আয় কিন্তু এই কোভিড কালে হাজার হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মোদি সাহেব তাদেরকে সাহায্য করছেন, তাদের সহযোগিতা করছেন, তাদেরকে আর কি নানা ট্যাক্সে আর কি ছুট দিচ্ছেন উনি, ছাড় দিচ্ছেন উনি। আমি যেই বৃহৎ 2টো শিল্প গোষ্ঠীর নাম বললাম, আপনারা খুব ভালো করে জানেন, আদানি আর আম্বানিদের। এটা কি করে সম্ভব যখন সবারই আয় কমছে, সবারই আয় কমছে, প্রত্যেকটি কোম্পানি তাদের মুনাফা কমে যাচ্ছে, তখন কিন্তু 2টো বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী তাদের আয় বেড়ে যাচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতো না, এটা হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশ আজকে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার ব্যবস্থাপনার দিক। অনেকেই ভাবছেন যে আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে যদি আগুন লাগে তাতে আমার কি, এটা ভয়ঙ্কর ভুল। প্রতিবেশীর বাড়িতে যদি আগুন লাগে, সামাজিক সংগতি যদি বিধ্বস্ত হয়, ঘৃণার বশত আমরা যদি কাউকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করি, মনে রাখবেন যে বাড়িতে আপনারও আগুন লাগবে। এবং তাই হয়ে থাকে। এবং তাই জন্য যারা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করছেন বা সেগুলিকে সমর্থন করছেন, তারা কিন্তু খুব সাবধান হতে হবে। আপনাকে জানিয়ে রাখি, জানেন তো সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু কারা? ভারতবর্ষের মানুষ। কেন কি, ভারতবর্ষের পাসপোর্ট আমেরিকাতে বা নাইজেরিয়াতে বা ইংল্যান্ডে বা বাংলাদেশে সব জায়গাতে তো আমরা সংখ্যালঘু। তো আমাদের দেশে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনদের স্বার্থ রক্ষার্থে, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার্থে আমরা যদি সচেষ্ট না হই, তাহলে
আমাদের বিরুদ্ধে যদি মালয়েশিয়াতে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি ওমানে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি জার্মানিতে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি ফ্রান্সে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কানাডাতে যদি সেখানকার সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহলে সেটা কি ভালো হবে? আমরা কি ভালোভাবে নেব না? আজকে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে, তার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে গভর্নমেন্ট তারা ট্যাক্স কালেকশন করছে, আর এত বেশি করে ট্যাক্স কালেকশন করছে আমরা এখন সত্যিকারের অর্থে বুঝতে পারছি না যে গভর্নমেন্ট টাকাগুলি কি করছে। নোটবন্দির সময় বোঝা গেছিল যে ভারতবর্ষের যত ব্ল্যাক মানি, যত কালো টাকা, সেগুলিকে কিন্তু সাদা টাকায় বা ভালো টাকায় পরিণত করবার একটা চক্রান্ত বিজেপি করেছিল। আজকে সেই চক্রান্তের ভিত্তিতেই তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে টাকা ছড়াচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় এমএলএগুলিকে কিনে নিচ্ছে। ये बहुत बड़ा संकट है देश के सामने, और इस संकट से निपटने के लिए हमें तृणमूल कांग्रेस की जरूरत है। अब सारा देश देख रहा है, बंगाल में अमन है, शांति है, और प्रगति की और विकास की राह पर भी हम लोग चल रहे हैं। आज यदि ममता बनर्जी और तृणमूल दुर्बल होती है, बंगाल दुर्बल होता है, देश दुर्बल होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर हम आरएसएस की संस्कृति को नहीं लागू करने देंगे। ये आरएसएस वाले लोग वही हैं, ये जो महिलाएं आप लोग यहाँ बैठी हैं, ये जो आरती गोल जी ने कहा, आप लोगों को पता नहीं है। आरएसएस वालों को पूछिएगा जो गोलवालकर का क्या विचार है महिलाओं के बारे में, नारी स्वाधीनता के बारे में, जो सबसे बड़े पंडित हैं आरएसएस के, उनको पूछिएगा हेडगेवार का क्या विचार है महिलाओं के बारे में। उनको पूछिएगा जो अभी जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो क्या कहते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में। उनका कहना साफ है, शाम हो गई है, आप लोग घर जाइए, आप जींस नहीं पहन सकते, आपको बाहर में काम काज करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। ये आरएसएस के विचार है, ये लिखित विचार है, लिखा हुआ है। उसके बावजूद कुछ महिलाएं वो आरएसएस और बीजेपी का जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहती है। आपको पता है जय श्री राम कहां से आया? पता है? जय श्री राम नहीं होता है, जय सिया राम होता है। हमारे हिंदुओं में हमेशा महिलाओं का, जैसे कि हम लोग कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं राधा कृष्ण। जय सिया राम, जय सीता राम। अब मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, मैं मैथिल हूँ, डुअर्स का रहने वाला हूँ, माल बाजार का, नॉर्थ बंगाल से पढ़ा है, तो हमारी ओरिजिन मधुबनी की है। सीता हमारे वहाँ से आती है, तो वहाँ पर जय सिया राम, तो सिया यानी कि महिला का सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए ये लोग उसको बना दिए, सिया को बना दिए जय श्री राम। राम तो हमारे दिल में बसते हैं, कोई बात नहीं है। पर यदि किसी, जैसे कि वसीम यहाँ पर बात हो रही थी, वाशरूम बता रहे थे, जो किसी के ऊपर अत्याचार करते वक्त जय श्री राम का नारा लगाना, ये किस तरह से भगवान के प्रति प्रेम है, ये किस तरह का समर्पण है। अभी मैं एक कर्मसूची में जाऊंगा, वहाँ सबको यही क्या कहेंगे, जय श्री श्याम। एक तरह का भगवान के पास निवेदन है। हमारे सिलीगुड़ी में जब हम बात करते हैं किसी से, কারোর সঙ্গে নেপালিতে কথা বলি, পরের বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলছে, কেউ আমাদের বাংলায় কথা বলছে, সবার সম্মান আছে। আর এখানে এগুলিকে, এই বিভিন্নতাগুলিকে রক্ষা করতে তৃণমূলের প্রয়োজন। আমি আর বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তব্য আর রাখবো না। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, চলুন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে দুটো স্লোগান দেব আমি, একটা হচ্ছে হিন্দিতে আর একটা হচ্ছে বাংলাতে। প্রথমে আমি বাংলাতে বলবো, বাংলায় দরকার মমতার সরকার। কেউ রেকর্ড করবেন প্লিজ, ঠিক আছে? বাংলায় দরকার, বাংলায় দরকার, बांग्लादेश दरकार। अब हम हिंदी में बोलेंगे।
बंगाल में है दरकार ममता की सरकार, बंगाल में है दरकार सरकार, ममता, बंगाल में है दरकार ममता की सरकार, बंगाल में है दरकार। ममतार सरकार। और क्यों दरकार है? क्योंकि हमें अपनी विभिन्नताओं को बचाना है, हमारे नारी सम्मान को अक्षुण्ण रखना है, हमारे प्रगति को रेखांकित करना है, क्योंकि हमें आगामी दिनों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारे देश को और देश के सम्मान को, संविधान को बचाना है। और इसीलिए बहुत ही जरूरी है जो सिलीगुड़ी से हम लोग जीते। 2 तारीख को, जैसे कि संजय पाठक जी कह रहे थे, 2 तारीख को ममता एक्सप्रेस चलेगी, 10:30 बजे से रवाना हो जाएगी ममता एक्सप्रेस, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक बहुत स्पीड पकड़ लेगी। और पता है ना, उसमें सिलीगुड़ी का बॉगी रहेगा कि नहीं रहेगा? ममता एक्सप्रेस में सिलीगुड़ी का बॉगी जोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। सिलीगुड़ी संभावनाओं का शहर है, सिलीगुड़ी भविष्य नगरी है, पर सिलीगुड़ी असंपन्नता से घिरी हुई है। 80% खुले ड्रेन है यहाँ पर। और जैसे सम्मानीय आरती घोष जी ने कहा, 10 साल से कुछ काम भी नहीं हुआ, और एक ही व्यक्ति हैं जो कि सिलीगुड़ी से मंत्री रहे, विधायक रहे, चेयरमैन रहे, कॉरपोरेशन के मेयर रहे, अभी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरपर्सन है, और उसके बाद भी खाली बोले जाते हैं कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। अपना पूरा वोट, सीपीएम का वोट ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को लोकसभा में, और अभी तो कैंडिडेट भी सप्लाई करना पड़ा। बीजेपी बोलती है कितनी बड़ी पार्टी है, कितना बड़ा उनका वर्चस्व है, और पूरे सिलीगुड़ी में उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। उसलिए सीपीएम के साथ उन लोगों ने बात की, और सीपीएम का जो सेकंड पर्सन है सिलीगुड़ी में, क्या नाम है इसका? शंकर घोष। ये शंकर घोष को सीपीएम ने बीजेपी के पास भेज दिया, और अभी वो बीजेपी का कैंडिडेट हो गया। पहले वोट ट्रांसफर किया और अभी कैंडिडेट ट्रांसफर किया। और मैं लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा, अशोक भट्टाचार्य जी मित्र भी हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। मैं कहता हूं जो वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, किंतु सिलीगुड़ी के लिए कोई प्रशंसनीय काम उन्होंने नहीं किया। ये बहुत गलत बात है। 40 साल से अब तक उनको रिटायर कर जाना चाहिए था, उन्होंने रिटायर भी नहीं किया, और अभी नकल खेल खेल रहे हैं सीपीएम और बीजेपी। और इसीलिए सीपीएम पीछे आ गई है, एकदम हादसे पे चली जाएगी, और बीजेपी का भी ये 1 नंबर और